If someone will say you can improve your speaking through reading, I know you are not going to trust it because you will think how one can improve his spoken through reading. Is it really possible that through reading we can improve our spoken? Today in this video, I'm going to solve this myth. I will explain you how you can improve your spoken style through reading. I will just make you read a story and I will explain you practically how you're going to improve your spoken through reading and apply all these tips that I'm going to give in this session. Trust me guys, this video is going to help you a lot to improve your reading session. Let's start this dynamic session. I hope you are ready to watch it. Let's get started. Remember students, whenever you read any text, any content in English, you must know the grammar of that. Now here you can see this is the story from our book, 21st story, The Cunning Fox and the Clever Stork. In this story, you will find a cunning fox who is very mischievous and always try to cheat others. But in the end, how he cheated, you will just find that how he cheated in the end of the story, and this story will make you laugh at the end of the session because the mischievous and the cunning fox who used to cheat others is cheated in the end of this story. So read the story till end and watch the session till end, and I must say you will definitely enjoy it. The Cunning Fox and the Clever Stork, this is the title of the story. Now you can see, once upon a time, whenever you start any story reading, remember it, this is the punchline of any story. You can directly say, once upon a time there used to be a garden, once upon a time there used to be a jungle, once upon a time there was a fox and a what you can say, a cunning fox and a clever stork. You can speak in this way. You can start any story by saying once upon a time. Now I'm going to read it and I will explain you everything. Just see. There lived a very cunning and mischievous fox. There lived, अब यहां पर एक जो सब्जेक्ट है वो देयर नहीं है एक्चुअल में. द सब्जेक्ट इज फॉक्स विच इज कनिंग एंड मिस्चीवियस. सो एक मिस्चीवियस और कनिंग फॉक्स रहता था. कनिंग मतलब होता है चतुर, चालाक, समझदार. मिस्चीवियस मिस्चीफ से बना है. मिस्चीवियस मतलब होता है शरारती, जो दूसरों के मजे ले, जो दूसरों के साथ शरारत करे, मस्ती करे, उसको कहते हैं. He used to speak to other animals sweetly. वो दूसरे एनिमल्स के साथ में बहुत ही अच्छे से बात करता था. Used to सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा. Used to हुआ करता था जो भी काम. And gain their trust. Gain trust मतलब होता है विश्वास जीतना, और उनका विश्वास जीत लेता था. Before playing tricks on them. उनके ऊपर ट्रिक्स खेलने से पहले विश्वास जीतता था, फिर उनके साथ ट्रिक्स खेलता था. One day the fox met a stork. एक दिन फोक्स जो है किससे मिला? एक स्टॉर्क से मिला. स्टॉर्क कौन? स्टॉर्क in Hindi it's called Saras. The one who has a long nose, long neck, you can say. So that is the stork जिससे वो मिला. He befriended the stork. अब यहां पर एक नया वर्ड आया, befriended. तो सबसे पहले तो आप इसको समझो कि है क्या. फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, और बी फ्रेंड मतलब होता है दोस्त बनाना या दोस्ती करना. तो बी फ्रेंड की सेकंड फॉर्म है बी फ्रेंडेड. बी फ्रेंडेड होना मतलब होता है दोस्ती कर ली उसने. सेकंड फॉर्म है बी फ्रेंड की, बी फ्रेंडेड. सो ही बी फ्रेंडेड द स्टॉर्क एंड एक्टेड लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड. अब यहां पर आपने befriended लगाया तो यहां भी आपको V2 अप्लाई करना पड़ रहा है. एक्टेड लाइक मतलब ऐसा व्यवहार किया उसने, लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड. सून, अब बहुत जल्दी, राइट. He invited, simple past tense. Remember one thing students, in the previous session too I have explained that most of the content in any story you will find from simple past tense. So while reading you need to keep in mind, if you are reading any story, you need to keep in mind that the most of the sentence you will find from simple past tense. And whenever you recite any story, while speaking any story, you should also need to keep in mind that you have to use simple past tense, because without using simple past tense it's very tough to speak any story. Because what the story is all about, story is the incident that have already taken place, and whenever we speak any incident that has already taken place is always spoken in simple past tense. That is why you have to use the simple past tense to speak this story. Now you can see, soon he invited the stork to have a feast with him. अब उसने बहुत जल्दी invite किया किसको? stork को, to have a feast. feast का मतलब होता है स्टूडेंट्स दावत. जो खाने पर इनवाइट करते हैं ना, हम उसको कहते हैं दावत. फीस्ट पर इनवाइट किया विथ हिम, उसके साथ. द स्टॉर्क हैप्पीली. अब भाई हैप्पीली यहां पर जो है एडवर्ब है. हैप्पी में ILY को हटाकर ILY लगाया तो हैप्पीली हो गया एडवर्ब. एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया. द इन्विटेशन, आमंत्रण. अब भाई स्टॉर्क ने सोचा भाई अच्छा बंदा है, इनवाइट कर रहा है, खाने के लिए घर पे बुला रहा है, आई शुड एक्सेप्ट इट. बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया और पहुंच जाता है. द डे ऑफ द फीस्ट केम.
दावत का दिन आया एंड द स्टॉर्क वेंट टू द फोक्स हाउस, और स्टॉर्क जो है किसके घर पर गया, फोक्स के घर पर गया। अब देखो आपने यहां तक स्टोरी को पढ़ लिया, जस्ट ट्राई टू रीड दिस स्टोरी न्यू ऑनवर्ड्स। अब यहीं तक पहले उसको बोलने की प्रैक्टिस कर लो। होता क्या है, स्टूडेंट पूरी स्टोरी पढ़ता है एंड देन उसके बाद बोलता है, तो दिक्कत क्या आ जाती है कि वो स्टोरी का कंटेंट काफी ज्यादा रहता है, फिर हम बोल नहीं पाते। एक पैराग्राफ पढ़ लिया कि वंस अपॉन अ टाइम देयर यूज्ड टू बी अ, बिल्कुल सरल भाषा में, देयर यूज्ड टू बी अ फॉक्स एंड ही वाज वेरी कनिंग एंड व्हाट यू कैन से द वन मोर वर्ड, मिस्चीवियस। ही ऑलवेज यूज्ड टू मेक हिज फ्रेंड्स, ही ऑलवेज यूज्ड टू चीट हिज फ्रेंड्स। One day he met what you can say stork and he befriended with him. बस ये हो गया पहला पैराग्राफ। अब इसके बाद आगे क्या होता है, and he invited him for the feast. He invited him for the lunch, he invited him for the dinner. आप अपने शब्दों में लंच डिनर यू भी यूज कर सकते हो अगर आपको वर्ड फीस्ट याद नहीं आ रहा है तो। याद रखना स्टूडेंट एक चीज अपने दिमाग में, जब आप अपने शब्दों में बोलोगे सो यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक एज इट इज रिटन, यू विल स्पीक इन योर ओन वे, एंड व्हेन यू स्पीक इन योर ओन वे इट विल बी योर्स वे यार, अपना खुद का तरीका होगा। तो ऐसा नहीं कि एकदम जो वर्ड्स इसमें आए हैं वही वर्ड में यूज करूं, जी नहीं, आप अपने वर्ड यूज करें जो आपको आते हैं, उससे आपकी लैंग्वेज पर धीरे धीरे पकड़ जमेगी, आप अपने साथ कंफर्टेबल फील करेंगे। मुझसे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, हाउ कैन आई बी ए कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। आई वुड ऑलवेज से वन थिंग दैट इफ यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट English speaker, first be confident with yourself. If you are confident with yourself, you are going to be confident with others. Unless you are confident with yourself, you are not going to be confident with others. So in order to be good English speaker, first you need to be confident with yourself. And to be confident with yourself, just practice again and again. Read the sentence again and again. Understand the concepts. Now we are reading a story, just read it once, read it twice, thrice, you know how many times you can read, just read it, and after reading try to speak in your own words. Trust me guys, this session will definitely, this practice will definitely help you if you are revising the things again and again. Now we are moving ahead. See, the day of the feast came and the stork went to the fox house. To her surprise and disappointments, अब उसको थोड़ा सरप्राइज हुआ, निराशा भी हुई, डिसअपॉइंटमेंट। द फोक्स सैड, फोक्स ने कहा ही कुड नॉट मेक अ बिग फेस्ट, वो उतनी बड़ी दावत नहीं बना पाया एज प्रोमिस्ड, जो उसने वादा किया था कि बड़ी दावत बनाएगा। एंड जस्ट ऑफर्ड सम सूप, और उसने क्या ऑफर किया, कुछ सूप ऑफर किया थोड़ा सा पीने के लिए। व्हेन ही ब्रॉट द सूप, अब देखो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ब्रिंग यानी होता लाना, इसकी सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। व्हेन ही ब्रॉट द सूप आउट ऑफ द किचन, जब उसने किचन से सूप लेकर आया, द स्टॉर्क सा दैट इट वाज इन अ शैलो बाउल। अब भाई ये जो बाउल था वो कैसा था, शैलो था। शैलो मतलब होता उथला। अब एक स्टॉर्क जिसकी चोंच लंबी होती वो उथले से बाउल में कैसे पिएगा भाई सूप को, आप समझ सकते हैं। द पुअर स्टॉर्क कुड नॉट हैव एनी सूप विथ इट्स लॉन्ग बिल, जो पुअर स्टॉर्क था अपनी लंबी बिल से, अपनी लंबी चोंच से उसको पी नहीं पाया, उसको ले ही नहीं पाया, हैव नहीं कर पाया। हैव करना मतलब होता लेना, है ना। बट द फोक्स इजिली लिक्ड, लेकिन जो फोक्स था उसने आसानी से लिक कर गया। लिक करना मतलब होता चाटना, ठीक है। अब भाई वो तो बाउल कैसा था भाई, शैलो था, तो उसको आसानी से उसने चाट लिया। सो फ्रॉम द प्लेट, उसने प्लेट से उसको आसानी से चाट लिया। As the stork just touched the soup with the tip of its bill, the fox asked her, "How is the soup?" और जैसे ही स्टॉर्क ने टच किया सूप को अपनी लंबी बिल से, टिप, टिप मतलब उसकी जो सामने का हिस्सा रहता है उसको कहता है टिप ऑफ इट्स बिल, अपनी बिल की जो टिप है उससे छुआ। द फॉक्स आस्क्ड हर, तो फॉक्स ने उससे पूछा, हाउ इज द सूप, सूप कैसा है, डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। द हंग्री स्टॉर्क रिप्लाइड, अब बेचारा जो भूखा स्टॉर्क है उसने रिप्लाई किया, ओ इट्स गुड बट माई स्टमक इज अपसेट। बट माई स्टमक इज अपसेट मतलब मेरा पेट नाराज नहीं, मेरा पेट खराब है। ये लाइन याद रखिए, जब आप कभी किसी से कहते हो माई स्टमक इज अपसेट, दैट डजंट मीन कि मेरा पेट जो वो खराब है। अच्छा, कुछ बच्चों तो माई स्टमक इज स्पॉइल्ड भी बोल देते हैं। अरे भाई स्टमक स्पॉइल नहीं होता, खाना स्पॉइल होता है, दूध स्पॉइल होता है, स्टमक अपसेट होता है। सो माई स्टमक इज अपसेट, मेरा स्टमक कैसा है, खराब है, पेट खराब है। आई कांट टेक एनी मोर सूप, और मैं अब वो सूप नहीं ले सकता। आई एम सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू, सेड द फॉक्स।
तो फॉक्स ने कहा मैं माफी चाहता हूं, मैंने तुम्हें परेशानी दी, यहां पर बुलाया, आपकी तबीयत खराब है और आप आ गए, है ना। तो देखिए किस तरीके से चतुर और चालाक फॉक्स है भाई। अब नाउ यहां तक अब आपको अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करना है, बिकॉज याद रखने का जब आप अपने शब्दों में बोलते हैं किसी चीज को तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। मैं आगे ले चलता हूं आपको। द स्टॉर्क रिप्लाइड, स्टॉर्क ने कहा, ओ डियर प्लीज डोंट से सॉरी, ओ डियर प्लीज डोंट से सॉरी, सॉरी मत कहो भाई, आई हैव सम हेल्थ प्रॉब्लम एंड कैन नॉट एंजॉय व्हाट यू ऑफर, मेरे साथ कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है और जो आपने ऑफर किया व्हाट यू ऑफर आई कुड नॉट एंजॉय इट, मैं इसको एंजॉय नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दिस। शी लेफ्ट द प्लेस आफ्टर थैंकिंग द फॉक्स, उसने, अब देखो उसके लिए हमने शी यूज किया है, वो कोई फीमेल स्टॉर्क है इसलिए उसके लिए शी लगाया है कि शी लेफ्ट द प्लेस आफ्टर थैंकिंग द फॉक्स, फॉक्स को थैंक करने के बाद उसने जगह को छोड़ दिया, वहां से चली गई वो, एंड इनवाइटिंग हिम टू हर हाउस फॉर डिनर, और उसने अपने घर पर इनवाइट कर लिया डिनर के लिए कि भाई अब ऐसा है, अब हमारे घर पर आओ डिनर करने। द डे अराइव्ड, दिन आया, एंड द फॉक्स रीच्ड द स्टॉर्क्स प्लेस, स्टॉर्क्स में एपिस्ट्रॉफ एस लगाया है, अब स्टॉर्क के घर वो गया। आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज, एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज का मतलब होता है जब हम किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाना, थोड़ा सा स्माइल करना, हंसना, मिलना जुलना, बातें करना, उसको कहते हैं एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज। तो मिलने जुलने प्लेजेंट्रीज के बाद में द स्टॉर्क सर्व्ड सूप फॉर बोथ ऑफ देम, तो स्टॉर्क ने फिर दोनों के लिए सूप सर्व किया इन अ नैरो जार विद अ लॉन्ग नेक। अब एक नेरो जार में उसने उसको सूप को ऑफर किया जिसकी नेक जो थी लॉन्ग थी, मतलब वो जार कुछ इस शेप में बना हुआ था, राइट। अब क्या हुआ भाई, शी वॉज एबल टू हैव द सूप विथ इजिली विद अ लॉन्ग बिल, अब वो तो अपनी लॉन्ग बिल से, लंबी चोंच से इजिली मतलब होता है आसानी से, हैव द सूप, सूप को ले पा रही थी, बट द फॉक्स ऑब्वियसली कुडंट, लेकिन फोक्स था निश्चित ही नहीं ले पाता था, नहीं ले सकता था क्योंकि चांस ही नहीं था भाई। आफ्टर फिनिशिंग हर्स, अपना फिनिश करने के बाद में द स्टॉर्क आस्क्ड द फॉक्स इफ ही वाज एंजॉयिंग द सूप। अब ये जो इफ यहां पर लगा इसका मतलब यहां क्या निकलेगा, यदि नहीं निकलेगा, ठीक है। ये नरेशन पर बेस्ड कंटेंट है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज हुआ है तो आज लगने से ये इफ लगा है यहां पर, जो मीनिंग किसका दे रहा है, क्या का। तो स्टॉर्क ने पूछा कि क्या वह एंजॉय नहीं कर रहा है। द फॉक्स रिमेंबर्ड द फीस्ट ही हिमसेल्फ हैड गिवन द स्टॉर्क, अब उसको याद आती है अपनी फीस्ट जो उसने उसको ऑफर करी थी, एंड फेल्ट वेरी अशेम्ड, और उसको बड़ी शर्म महसूस हुई। ही स्टैम्बर्ड, अब स्टैम्बर्ड एक अच्छा वर्ड है स्टूडेंट, याद रखना, इसका मतलब होता है हकलाना। जब बातचीत करते वक्त हम लोग हकलाते हैं ना, उसको कहते हैं क्या बोलता है हकला के, आई वुड बेटर टू लीव नाउ, अच्छा होगा अब मैं निकलता हूं, राइट। ह्यूमिलिएटेड, अपमानित होकर, ही लेफ्ट द प्लेस रनिंग, दौड़ते हुए उसने उस जगह को छोड़ दिया, वहां से चला गया दौड़ते हुए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, वन बैड टर्न begets another. Now guys, what you have to do is that just read the story one more time and speak in your own words. Remember one thing, in the beginning you will make mistake, but if you keep making mistakes and keep trying, definitely you will improve yourself. Now see, अभी आपने इस स्टोरी को पढ़ा, पढ़ने के बाद सारे कंटेंट को समझा, इसके अंदर क्या ग्रामेटिकल कंटेंट आ रहा है, क्या चीजें आ रही है, सबको समझा। अब उस चीज को अपने शब्दों में समझाओ। कोई घर में छोटे भाई बहन आपके हैं, उनको लेकर बिठाओ, उनको समझाओ, उनको एक्सप्लेन करो। याद रखना, लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट तभी आएगा जब आप उस चीज को एक्सप्लेन करोगे। I hope, dear students, this session has been fruitful for you. Just try to speak this story in your own words and comment me how you have spoken. Right? If you could speak perfectly, just say, sir, I tried my well and I really found some changes in myself. Because remember one thing, when we try, we always learn something new. Never say कि भाई मैंने कोशिश करी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। कोशिश करने में भले ही कुछ नहीं मिले, लेकिन एक चीज जरूर मिलती है, हमको पता होता है कि ये गलती अब दोबारा नहीं करनी है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में, तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।